दिल्ली पुलिस की क्राइम शाखा के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2 महीने से भागता फिर रहा नारायण साई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर पिपली से गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए दिल्ली क्राइम शाखा की कई टीमें बनाई गई थी और अथक परिश्रम के बाद उसे और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खुद सुनिए दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह संवाददाताओं को क्या कह रहे हैं। His accomplice Bhakt Hanuman and Ramesh. Before telling you about the exact operation, it would be pertinent to go into some background. As all of you are aware that the case was registered by Surat Police in October, and in the month of October only the Surat Police visited Delhi and sought for our assistance. We conducted raids at large number of places in Delhi and held detailed discussions with Gujarat Police. They gave us details about some contact persons who may be in touch with either Narayan Sai or Bhakt Hanuman or Ramesh. We found that one of the close contact of Ramesh driver was not found at his premises in Rohini. We were on lookout for him, and finally when we met him, he said that he will cooperate with us and give us the information. We got the information that Narayan Sai and his accomplice may be in Punjab. Further, we zeroed in and we found that he may be in Ludhiana. We sent our team to Ludhiana. Thereafter, wrecking a few places, we came to know that Narayan Sai was at a particular premise, but when our team reached there, they did not find him, and the persons around said that they have left in a vehicle which is, some said white, some said silver. Finally, we zeroed in on silver, on white color vehicle, Eco Sport, and they also said that it may be traveling on NH1. Immediately we said that he may be coming to Delhi, may be halting in Chandigarh, may go to Meerut, may go to Zirakpur. So teams were required to be sent. So we sent teams, and the teams took positions at the major diversions which took place, which are there on NH. The team which was located in Ambala found this vehicle going at a very high speed. Our team followed the vehicle and intercepted it near Popli, which is near Kurukshetra. On asking them, they were giving all kinds of identity, and therefore all the other teams were asked to come so that we can bring them safely and securely to Delhi. So they were brought to Delhi and they were interrogated, and then they divulged, yes, they are Narayan Sai, Bhakt Hanuman and Ramesh, and there was also one juvenile with them in the vehicle. So after ascertaining their whereabouts and their identity, and having reasonably confirmed ourselves that they are the people on whom
Surat police had given us information and were wanted. We effected their arrest. The persons who were arrested, their details, names etc. are given in the press release, and we informed Surat police. They have already come here and we are going to produce them in the court. They will be taking the remand and doing the further questioning. Thank you. सूरत की पुलिस दिल्ली आई थी और उन्होंने हमसे सहायता मांगी थी। हमने उनके साथ दिल्ली में कुछ जगहों पे रेड किया था और उनसे बहुत विस्तार से बातचीत करी थी ताकि हम इस पे काम कर सकें। उन्होंने कुछ लोगों के पते हमें बताए थे जो हो सकता है कि नारायण साईं और उनके लोगों के कांटेक्ट में हों। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी उस इन्फॉर्मेशन को हमने डेवलप किया, उस पे काम किया, और जब हमें ये पता चला कि एक आदमी है जो कि ये रमेश जो कि ड्राइवर का काम करता है उसके कांटेक्ट में है, तो उस व्यक्ति को जब हम मिले तो उसने हमें बताया। उसको फिर हमने और वेरीफाई किया तो हमें ये पता चला कि ये लुधियाना में है। हमारी टीम लुधियाना गई, वहाँ पर पता चला कि वो एक सफ़ेद इको स्पोर्ट गाड़ी में निकले हैं और वहाँ से निकलने के बाद फिर हमने उस गाड़ी के बारे में और जिक्र करके और हमने यहाँ से अपनी टीमें भेजी ताकि सब जगह पे हम जहाँ जहाँ डाइवर्सन है ऑन NH और टू द मेन सिटीज़ वहाँ पर लगाएं। तो जो टीम हमारी अम्बाला में थी वो टीम ने ये देखा कि ये गाड़ी जिसकी डिस्क्रिप्शन सेम है वो बहुत तेज़ी से जा रही है, तो उसको फॉलो की और पिपली में जा कर के इसको इंटरसेप्ट किया, रोका गाड़ी को। रोकने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ अपना नाम अलग अलग बताए। तो फिर बाकी टीमों के लिए थोड़ा वेट करके, क्योंकि रास्ता लंबा था, तो वह बाकी टीमों के लिए वेट करके उनके साथ लेकर उनको रात को हम यहाँ ला के पहुँचे और उनकी जब इंट्रोगेशन करी तो इंट्रोगेशन में ये पता चला कि यही नारायण साईं हैं और ये भक्त हनुमान है, ये रमेश है और एक जुवेनाइल था। तो हमने 3 को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके आज अभी हम कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सर, इस दौरान ये कहाँ पर छुपे थे, लुधियाना में कहाँ रहे और अहमदाबाद पहुंचने के दौरान कहाँ गए? देखिए, ऐसा है कि अभी जो भी सूचना उन्होंने दी है उस सूचना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी सूचना दी है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, वी हैव टू वेरीफाई दोज इंफॉर्मेशन बिकॉज एंड दैट पार्ट इज टू बी डेल्ट with by the Surat police, because they have told कि they went to Punjab, here they were in Delhi, when they came to know when the case was registered they were in Jaipur, they also went to, they are naming so many places. The point is that is a thing which we cannot confirm or deny until unless one visits those places, talks to people कि yes did he come here, did he stay or not. सर, जिसकी गाड़ी है नेहा दीवान, क्या उनको इंटरोगेशन के लिए बुलाएंगे, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज करेंगे? देखिए, केस जो है सूरत पुलिस में दर्ज है, इसलिए ये जो कार्रवाई जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये चर्चा या वो कहाँ कहाँ रहे, इन सभी चीज़ों की चर्चा जो है आप कर सकते हैं सूरत पुलिस से। सर, गाड़ी किसकी थी सर? गाड़ी हमारे पास इतना वक्त नहीं मिला कि हम वेरीफाई कर सके, हमें टाइम लगेगा कि वो गाड़ी, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है बट अनटिल अनलेस उसको मैं ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई न कर लूं मैं नहीं। सर, एक चीज बताएं, ये लुधियाना में बताया जा रहा है किसी बिजनेसमैन क्या रहे और उस बिजनेसमैन के यहाँ से ही निकले थे, तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? उसकी देखिए, मैं ये चीज नहीं कह पाऊंगा कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, किसका घर था, इन चीजों की तहकीकात तो हमने करी नहीं। हमें जब पता चला कि इस घर पे हैं तो अब हम तो ये कह नहीं सकते कि ये घर किसका है नहीं है जब तक कि उसकी तहकीकात हम ना कर लें। तो ऐसा है ना कि वो दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने, तो जब दाढ़ी रखी हुई थी तो उसको जब पूछा गया तो वो चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो बड़ा मुश्किल है कहना कि वो कौन आदमी है। जो ड्राइवर है वो हमें तो पता था कि उसका नाम रमेश है, वो कह रहा है सुरेश,
या कुछ ऐसा नाम बता रहा था। तो जब तक कि उससे पूछताछ न की जाए और वो हम कंफर्म ना हो जाए तब तक किसी की गिरफ्तारी तो नहीं डाल सकते। देखिए ऐसा है कि ये आप समझ लीजिए कि ये केस सूरत पुलिस का है, तो जितनी भी इनिशियल इंफॉर्मेशन थी शुरू में जो हमें उन्होंने सूचना दी वो उन्होंने दी, फिर उस सूचना पे हमने काम किया, उसको डेवलप किया। उसको डेवलप करने के दौरान हमें कुछ और बीच में इंफॉर्मेशन मिली, उन इंफॉर्मेशन को हमने वेरीफाई किया। हमारे पास और कोई तरीका नहीं था कि हम उनसे बात करते जो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो उन्होंने वेरिफिकेशन में, इनिशियल कॉन्टैक्ट के डिटेल्स देने में उन्होंने हमारी मदद, हम लोग दोनों ने इकट्ठे काम किए हैं। लेकिन ये जो ऑपरेशन है पकड़ने का, जो हमारी टीम पंजाब गई या हमने जो टीमें लगाई, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में सूरत की कोई पुलिस नहीं थी। नारायण साईं के पास से 2,61,000 रुपये नारायण साईं से, 13,500 रुपये भक्त हनुमान से और 6 मोबाइल फोन्स और उनके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स, कपड़े, स्टोव और फलाना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये भगोड़ा घोषित था एक तरीके से, और उस दौरान आपके ऑपरेशन में किसी के फरमाइश से मिला है, उसके पास से दूसरे की गाड़ी मिली, क्या किसी भी तरीके से उन लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता जिन्होंने इनको? देखिए पॉइंट ये है कि उनके खिलाफ क्या मामला बनता है और नहीं बनता है, ये तो सूरत पुलिस डिसाइड करेगी। सर ये ऑपरेशन तो दिल्ली पुलिस नहीं, ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का है, क्योंकि एक इसके खिलाफ नॉन बेल वारंट इशूड था और ये वांटेड था सूरत में एक केस में, तो उस केस में हम लोगों ने इनको पकड़ के दिया। बाकी की जो वेरिफिकेशन है और जो लीगल कार्रवाई है वो सूरत पुलिस करेगी। सर यूपी के मेरठ या मथुरा से यूपी पुलिस ने आपको कोई टिप ऑफ दिया था? मेरठ या मथुरा? मेरठ और मथुरा से हमें कोई टिप ऑफ नहीं था। सर इनकी गाड़ी में स्टोव और बर्तन मिले थे, तो क्या खाना भी रास्ते में कहीं बनाते थे, क्या ऐसा कुछ मिला नहीं, हमारे सामने तो इन्होंने कभी नहीं बनाया खाना। लेकिन यदि स्टोव और बर्तन और किस काम यूज होगा ये आप खुद समझ लीजिए। देखिए ये तो कंजेक्चर्स हैं, इन द सेंस कि हमें जो बातचीत में पता चली कि वो दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली आ रहे थे किसी वकील को मिलने या किसी लीगल हेल्प के लिए, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने बताई हैं। उसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी बातों को, जैसे मैंने कहा कि उनकी बातों को जब तक हम वेरीफाई नहीं करते तब तक जो है सो हम उस पर कोई भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते। तो सूरत पुलिस करेगी। सर ये कंफर्म कब हुआ कि वो नारायण साईं है, वहाँ से लिया है, वो चुप रहे, तो यहाँ के कैसे आपने पहचान की कि उन्होंने कहा कि हाँ मैं वही? नहीं, उनको पूछा हमने बार बार कि भाई आपका नाम ये है, ये आपका नंबर है, ये है, तो उन्होंने कहा चलो जी हम ही यहाँ पकड़ लिया तो क्या है। हमारी टीम के एसीपी जिन्होंने ये काम को अंदाज दिया है और डे टू डे इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, कमल मल्होत्रा हैं और उनके डीसीपी ज्ञानेश हैं और एडिशनल सीपी साहब हमारे बैठे हैं, रविंदर यादव साहब, जिनकी काफ़ी वो सुपरविजन रही है। तो इनको मैं आपके सामने कहना चाहूँगा इनके बारे में।